السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو تمام احباب کو تمام اسٹوڈنٹس کو آن لائن انگلش لینگویج کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا کورس انشاءاللہ العزیز 3 ماہ چلے گا۔ یہ بیسک ABC سے شروع ہوگا، تمام ٹینسز اور اس کے تمام لیولز انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ جیسے بقیہ زبانوں کا انحصار حروف پر ہوتا ہے، اردو میں حروف تہجی ہیں، الف با تا سا ہے، عربی میں ہے، اسی طرح انگلش میں الفابیٹس ہیں جن کو حروف کو انگلش میں الفابیٹس کہا جاتا ہے، حروف تہجی۔ انگریزی زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 26 ہے۔ ان میں 5 ہیں جن کو واول حروف کہا جاتا ہے، یہ حروف علت ہیں، اور 2 سیمی واولز ہیں جن کو یہ نہ تو یہ واول ہیں نہ ہی یہ کانسوننٹ ہیں، لیکن تقریباً ان کے اندر دونوں چیزیں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ ان کو واول میں بھی شمار کر لیتے ہیں، ان کو کانسوننٹس میں بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن عرف میں ان کو سیمی واول بول دیا جاتا ہے۔ Alphabets consist upon 26 letters in which 5 are vowel, 2 semi-vowel and 19 letters are known by the name of consonants. Vowel جن کو حروف علت کہتے ہیں یہ 5 ہیں، A, E, I, O, U، اور سیمی واول Y and W ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حروف تہجی کی پہچان کے لیے ان کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ بڑی ABC اور چھوٹی ABC جسے ہم اپنے عرف میں مشہور کہتے ہیں، ان کو کس طرح لکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ورڈ، جسے ہم لفظ کہتے ہیں، جسے ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں چند حروف کے مجموعے کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح a group of letters which gives at least one meaning it's called word۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کم از کم ایک معنی دیتا ہے، ایک مفہوم دیتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں۔ جس کی مثال سن ہے، SUN۔ یہ چند حروف ہیں، ان کے ساتھ یہ تینوں کو ملائیں تو سن بنتا ہے۔ This word consists 3 letters، it's mean سورج۔ اس کو سورج کہتے ہیں سن کو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ انگریزی کا کوئی بھی لفظ حروف علت یعنی واولز کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اگر کسی بھی لفظ کے اندر واولز میں سے کوئی نہیں ہوگا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوں گے کہ ان میں حروف علت واول نہیں ہوگا، تو ان میں لازمی طور پر سیمی واول Y یا W میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سینٹنس، فقرہ و جملہ۔ چند الفاظ ملتے ہیں تو ایک فقرہ بن جاتا ہے، ایک جملہ بن جاتا ہے، جسے اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے an arrangement of words which makes complete sense it's called sentence۔ الفاظ کی ایسی ترتیب جو ایک مکمل معنی اور مفہوم آپ کو دے اسے سینٹنس کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، بے ترتیب الفاظ جتنے مرضی ہوں ان کا کچھ بھی معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کو خاص ترتیب جب دی جاتی ہے تو پھر وہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے this is a chair، this ایک الگ ورڈ ہے، is ہے، chair ہے، جب ان کو ملاتے ہیں تو یہ ایک سینٹنس بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں پارٹ آف اسپیچ، جسے پارٹ آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ گوروں کے انداز میں پڑھیں گے تو یہ جو پی ہے یہ پے کے ساتھ ساتھ پھے کا بھی معنی دیتا ہے، پارٹس آف اسپیچ، پارٹس آف اسپیچ۔ تو پارٹس آف اسپیچ اگر اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں، پارٹ کہتے ہیں حصے، آف کی کا کے معنی میں آتا ہے، اسپیچ کہتے ہیں بولنے کے اندر کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ناؤن کہتے ہیں اسم، جیسا کہ دا نیم آف اینی تھنگ، اینی پرسن، اینی پلیس اینڈ اینیمل اٹس کالڈ ناؤن۔
किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी चीज़ या किसी जानवर का कोई भी नाम जो है उसको नाउन कहते हैं। या फिर इसकी एक और तारीफ़ करते हैं, एनीथिंग विच कैन सी इट फील्स इट्स कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जिसे देखा जा सकता है या जिसे महसूस किया जा सकता है उसको नाउन कहते हैं। फिर इसी तरह प्रोनाउन है, प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर। अरबी पढ़ने वाले तलबा इसमें ज़मीर को अच्छे से जानते हैं, और जो लोग उर्दू से वाकिफ़ हैं उनको भी ज़मीर का ज़रूर पता होगा। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ इंग्लिश में करते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। कोई भी लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर, इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अली इज़ अ वीक बॉय, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इसमें देखें, अली इज़ अ वीक बॉय, अली क्या है, ये इसम है, ये नाउन है, और ही इज़ अ प्रोनाउन। असल तो ये था कि ही कैन नॉट रन फास्ट, यानी अली कैन नॉट रन फास्ट। तो यहाँ पर अली की जगह पर ही एक ज़मीर को ले आए हैं, तो यहाँ पर जो ही है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल लेता है। वी हैव सम प्रोनाउंस, हमारे पास चंद ज़मीरें हैं, जैसे इट, आई, वुई, यू, दे, ही, शी। इट मतलब ये चीज़ कोई भी हो आपके पास हो, आई, मैं, वुई, हम, यू, तुम, आप। दे इस्तेमाल होता है वो लोग जिसमें मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं। और ही, शिट, ही इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए, गायब के लिए, वो शख्स कोई भी वो हो सकता है। शी जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, गायब के लिए। आगे चलते हैं जी। एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना आपने, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को। हम इसकी तारीफ़ कुछ यूँ करते हैं, अ वर्ड विच शोज़ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की सिफत, उसकी खुसूसियत या उसकी मिक़दार को वाज़े करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसकी मिसाल, अली इज़ अ फैट, तो इसमें जो फैट का लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है, ये उसकी एक सिफत है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, फ़ाइल। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल, ही गोज़ टू स्कूल, तो ही जो शुरू में है ये क्या है जी, ये सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ अली गोज़ टू स्कूल, तो अली यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। आगे चलते हैं जी। इसके बाद है वर्ब। वर्ब कहते हैं फ़ेल। कोई भी काम जो है उसे फ़ेल कहा जाता है हमारे उर्दू में। काम को, किसी भी काम के करने को फ़ेल कहते हैं। वर्ब आर यूज्ड टू से व्हाट पीपल डू दे एक्सप्रेस देयर एक्शन। वर्ड हमें बताता है लोगों के कोई भी काम करने को, ठीक है जी। तो फिर वर्ब की दो किस्में हैं फ़ेल की, एक है एक्शन वर्ब और एक है स्टेट वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसे रन, गो, ईट, कोई भी काम है ना जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं, जिसके अंदर वाक़तन इंसान उसको करता है, अमल में लाता है, एक्शन वर्ब कहलाता है। और बी कहते हैं होना। बी जो है इसका मतलब है होना, कोई भी काम का हो जाना। तो इज़ मतलब होना है, आई, इज़, एम, आर जो ये हम इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब भी होना ही है, तो इसको कहा जाता है बी इज़ इक्वल टू इज़, एम, आर। बी का मतलब वही है जो इज़ का है, एम का है, आर का है। तो ये स्टेट वर्ब की मिसाल है, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह तफसील के साथ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास आखिरी जिसे हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल, जिस पर काम वाक़ होता है। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी काम के वसूल करने वाले को, जिस पर वो वाक़ हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर टीच यू, सर ने आपको, इसका तर्जुमा यूँ करते हैं, सर टीच यू, सर आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सर क्या है ये आप समझ चुके होंगे जब आपने पिछला लेक्चर सुना ध्यान से, कि डूअर ऑफ एन एक्शन की
जो डेफिनेशन है ये इस पे सादिर आती है इस पर। तो सर को हम सब्जेक्ट कहेंगे, टीच ये काम है, एक एक्शन है, ये वर्ब है, और आखिर में यू है, ये ऑब्जेक्ट है। आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ मुकम्मल होता है। इसको तफसील से पढ़ें, सुनें, और आप इसके साथ 20 इंग्लिश के वोकैबुलरी में अब आपके पास भेजे जा रहे हैं अल्फाज। इनको भी आप अच्छी तरह याद करें तफसील के साथ। इसमें इसके फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, अगर आपने उसको प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल करना है एस या ई एस के साथ तो वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, अगर आई एन जीज़ के साथ लगता है तो वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, ये मुकम्मल तफसील के साथ 20 अल्फाज आपको भेजे जा रहे हैं। रोज़ाना का सबक रोज़ाना याद करेंगे तो आइंदा अगले दिन के लिए आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें। इसको तफसील के साथ याद करें, और इसके लिए आपके पास आइंदा के लिए काम क्या है वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले सबक में।